Good morning. Welcome to SIS Only classes. Students, we have completed chapter 3, capital letters, full stops and question marks of our English language book cornerstone in our last video. And today we are going to start a new chapter of our English language book cornerstone in our today's class. And the number of this new chapter is chapter 4 and the name of this chapter 4 is nouns, common and proper. So students, today we will read chapter 4, nouns, common and proper, which is page number 15. And included this chapter 4, we will read and solve exercise A. Look at this picture, name the things that you see, which is page number 15. And after the distance, we will read about naming words and nouns. And then we will read and solve exercise O. Underline all the special names in these poems. Circle all the general names in these poems, which is page number 16 in our English language book cornerstone. And last distance, we will read and solve exercise A. Answer these questions of this chapter 4. Nouns, common and proper in our Fair English Language notebook in our today's class. Okay, so all students space partial listener class and listen to my words clearly, because firstly we are going to read and solve exercise A, which is page number 15, and after this we will read and solve exercise O, and then we will read and solve exercise A of this chapter 4. Okay, so all students look at the page number 15. Let's see chapter 4. Chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is nouns, common and proper. Nouns means संज्ञाएं. Okay, common means होता है जातिवाचक and means और proper means व्यक्तिवाचक. Okay, so students included this chapter 4 we will read common nouns and proper nouns. Okay, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा read करेंगे. Okay, so students let's see exercise A. Firstly, look at this picture. Okay, look at means देखिए, this means यहाँ picture means चित्र. Okay, look at this picture, it's mean इस चित्र को देखिए. Name the things that you see. Okay, name means नाम, the things means वस्तु या चीज़ों, that means जो, you means आप, see means देखते हैं. Name the things that you see. It's mean उन चीज़ों को नाम दे जो आप देखते हैं. उन चीज़ों के name write down करने हैं जो हम देख सकते हैं इस picture में. Okay, so let's see this picture. Okay, students look at this picture. We can see that in this picture we can see many things. Okay, firstly students let's see it's a tent. Okay, एक tent है. Okay, tents means तंबू. Okay, T-E-N-T-S. So students write down here tents. T-E-N-T-S. Tents means तंबू. Okay, तो write down करिए tents and it's a thing. Okay, एक thing का name है, एक वस्तु का नाम है. Clear? Let's see students, we can see that it's a woman. Okay, see a woman, एक woman है ना, W-O-M-A-N. So students write down here woman, W-O-M-A-N, woman. Okay, and students and this woman is wearing a sari. ये जो woman है ये साड़ी पहने ना. So students write down here साड़ी, S-A-R-E, साड़ी. Okay, and students let's see next vegetables. Okay, V-E-G-E-T-A-B-L is vegetable. We can see this picture. In this picture we can see that here are women, sari, vegetables, tents है ना. So students write down here vegetables. V-E-G-E-T-A-B-L is vegetables means सब्जियाँ. Okay, and let's see next. Students we can see that here are crows and they are flying. C-R-O-W-S. One crow is flying and one crow is sitting on the tent. Okay, एक fly कर रहा है और एक tent पे बैठा हुआ है. Okay, so students crows, C-R-O-W-S, crows. Okay, so write down करिए crows, C-R-O-W-S, and students we can see that he's a man. एक man है, I mean man. Okay, and he's buying vegetables. ये सब्जियाँ खरीदना है ना. I mean man, man means आदमी. Okay, so students write down man, I mean man, man means आदमी. Okay, it's your common noun. Let's see next. It's a cart, C-R-T, cart. Cart means here the meaning of cart है ठेला गाड़ी. Okay, so students write down करिए cart, C-R-T, cart. It's a thing name. Okay, एक thing है, एक वस्तु है. Let's see, it's letters. Okay, L-E-T-T-E-R-S. Letters means पत्र. Okay, so student एक ये postman है, डाकिया है, और इसके बैग में क्या है, letters है, और it is bag. Okay, ये क्या है, it is bag. ये इसका बैग है, B-A-G, bag. Bag means बस्ता. Okay, तो बैग राउट डाउन करिए. And since this postman is wearing a shirt. Okay, shirt पहने हुए ना, so write down करिए shirt, S-H-I-R-T, shirt. Clear? Let's see next. This postman is also wearing shoes. Okay, S-H-O-E-S, shoes means जूते. Okay, assistant write down करिए shoes, S-H-O-E-S, shoes means जूते. And this postman is wearing pants or trousers. ये जो postman है pants trousers पहने, P-N-T-S pants. Okay, या trousers, T-R-O-U-S-E-R. Trousers means पैजामा या पतलून होता है. Okay, तो pants या trouser, it's mean pant या पैजामा या पतलून. Okay, student we can see that in this picture we can see here are grass भी है. Okay, grass means घास. Okay, G-R-A-S-S, जो green है वो grass है ना. So student add on करिए grass, G-R-A-S-S. And student
we can see in this picture also that here are pots. Pots है ना, POT spots means बर्तन. Okay, और एक seller है, विक्रेता है, ये pot selling कर रहे हैं. Clear? एंड ये जो पॉट सेलर है ना, ये जो बर्तनों का विक्रेता है ना, ही इज़ वेयरिंग धोती. ये धोती पहने हुए, THOTI. ओके, असिस्टेंट राइट डाउन करिए, धोती, THOTI, धोती. ओके, एंड स्टूडेंट्स इट्स ड्रम्स. ओके, ये क्या है? ड्रम्स है, DRU में से. ड्रम्स मीन्स ढोलिया नगाड़ा. ओके, असिस्टेंट राइट डाउन करिए, ड्रम्स, DRU मीन्स ड्रम्स. ओके, so students, we can see all these things in this picture, and these things are tents, crows, women, sari, vegetables, shirts, shoes, bag, pants या trousers. Okay, pants या trousers, man, cart, letters, grass, pots, and dhoti, drums. Okay, so crows, so all these things. Okay, ये सारी things है. Okay, and students, we have completed this exercise A. We have write down name of these things. Okay, which we can see, जो हम देख सकते हैं. Okay, so students, turn your page forward, look at the page number 16. Okay, now we are going to read about naming words. Okay, so let's see that what are naming words. Okay, the names that we give to people, animals and things are called naming words. The names, it's mean नाम, that means जो, we means हम, give means देते, to people means लोग, animals means जानवर, and means और, things means वस्तुओं, are means है, called means कहते. naming words means नाम वाले शब्द. The names that we give to people, animals and things are called naming words. It's mean नाम जो हम लोगों, जानवरों और वस्तुओं को देते हैं, नाम वाले शब्द कहलाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों, जानवरों और वस्तुओं को जो नाम देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं, नाम वाले शब्द बोलते हैं. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट. नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन्स. ओके, नेमिंग वर्ड्स में नाम वाले शब्द, आर मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, नाउन्स मीन्स संज्ञा. नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन्स. ओके, तो हम नाम वाले शब्द को नाउन्स भी बोलते हैं. नेमिंग वर्ड्स को और क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं. नाम वाले शब्द को संज्ञाएं भी बोलते हैं. ओके, नाम वाले शब्द को संज्ञा भी हम बोलते हैं. नाउन मीन्स होता है संज्ञा. ओके, names of people, places, animals and things are called nouns. It's a definition of noun. Okay, so look clearly. Names means नाम, of means capable means लोग, places means वस्तु, animals means जानवर, and means और, things means वस्तु, are means है, called means कहते, nouns means संज्ञा. Okay, names of people, places, animals and things are called nouns. लोगों, लोगों, स्थानों. Okay, place means स्थान. Okay, things means वस्तु. लोगों, स्थानों, जानवरों और वस्तुओं के नामों को क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं. ओके, लोगों, स्थानों, जानवरों और वस्तुओं के नाम संज्ञाएं कहलाते हैं. ओके, किसी भी पीपल का नेम हो गया, प्लेस का नेम हो गया, एनिमल का नेम हो गया, थिंग का नेम हो गया, सारे नेम क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, संज्ञा होते हैं. क्लियर? लेट्स सी. Now we are going to solve exercise O. We have read about naming words and noun, and I hope you must have understood naming words and nouns. तो since naming words और noun सेम होते हैं, ओके, हम naming word को noun भी बोलते हैं, नाम वाले शब्द को संज्ञा भी बोलते हैं. ओके, सो द सेकेंड नेम ऑफ नेमिंग वर्ड इज नाउन. ओके, नाम वाले शब्द का दूसरा नाम क्या हुआ? नाउन हुआ, संज्ञा हुआ. किसी भी पीपल का नेम हो गया, किसी भी एनिमल का नेम हो गया, थिंग का नेम हो गया, प्लेस का नेम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, संज्ञा होती है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं. क्लियर? Okay, student, now we are going to solve exercise O. So let's see exercise O. Underline all the special name in these forms. Circle all these general names in these forms. Okay. Underline means रेखांकित करिए. Okay. All the special names, सभी विशेष नामों को in these form, इन कविताओं में. Underline all the special names in these form. It's mean इन कविताओं में सभी विशेष नामों को रेखांकित करिए. Circle all the general names in these form. It's mean सर्कल मीन्स गोला करिए. ऑल दी जनरल मीन्स सभी सामान्य नामों पर इन दीज फॉर्म, इन कविताओं में. ओके, स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? जितने भी हमारे स्पेशल नेम है, जितने भी हमारे विशेष नाम है, उन पे हमें अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है उन्हें, और जितने भी हमारे जनरल नेम्स है उन पे सर्कल करना है, जितने भी हमारे सामान्य नाम है उन पे गोला करना है. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट फॉर्म. पुसीकैट. पुसीकैट, दिस पोम इज बेस्ड ऑन पुसीकैट. ये जो पोम है ये पुसीकैट पे बेस्ड है. ओके, वी कैन सी दिस पिक्चर, इट्स अ पुसीकैट. ओके, ये पुसीकैट है. क्लियर? सो लेट्स सी. Pussycat, pussycat, it's a name of this poem. Okay, pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to look at the Queen. Pussycat, pussycat, what did you do there? I frightened a little mouse under a chair. Okay, so student, pussycat, pussycat, it's mean pussy billy, cat means billy. Where have you been? Okay, where have you been? It's mean आप कहाँ थे? Okay, I have been to London. It's mean मैं लंदन गई थी. To look at the Queen. Okay, Queen means रानी. Okay, to look at the Queen, it's mean रानी को देखने के लिए. Okay, pussycat, pussycat, pussy billy. What did you do there? It's mean तुमने वहाँ क्या किया? I frightened a little mouse. मैंने एक
छोटे से चूहे को डरा दिया. फ्राइटन मीन्स डरा दिया. अंडर अ चेयर, चेयर के नीचे. आई फ्राइटन अ लिटिल माउस अंडर अ चेयर. मैंने कुर्सी के नीचे एक छोटे से चूहे को डरा दिया. एक छोटे चूहे को डरा दिया. फ्राइटन मीन्स डरा दिया. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोम पुसी कैट. ओके, पुसी कैट इट्स योर स्पेशल नेम. पुसी कैट आपका क्या स्पेशल नेम है? ओके, एक कैट को स्पेशल नेम दे दिया गया, उसका विशेष नाम दे दिया गया पुसी. ओके, तो पुसी कैट आपका क्या हो गया? स्पेशल नेम हो गया. ओके, एंड स्टूडेंट्स, सो अंडरलाइन पुसी कैट. ओके, पोम में जो हमारे पोम का नेम है पुसी कैट, उस पर भी अंडरलाइन करेंगे, और जो पोम के इंक्लूडेड में जो फर्स्ट लाइन है उस पर भी पुसी कैट पे अंडरलाइन करेंगे. ओके, अंडरलाइन पुसी कैट. एंड आफ्टर डिस्टेंस लंदन, इट्स योर आल्सो स्पेशल नेम. लंदन भी आपका स्पेशल नेम है. ओके, बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी. एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है. ओके, तो इट्स अ स्पेशल नेम. सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन बिलो दिस वर्ड लंदन. ओके, इट्स अ स्पेशल नेम. ये स्पेशल नेम है. एंड स्टूडेंट्स, ओके, तो पुसी कैट 4 टाइम्स है. ओके, एंड पोम का नेम में तो 6 टाइम हो गया, तो अंडरलाइन कर लीजिए. एंड लंदन में अंडरलाइन कर लीजिए. ओके, तो पुसी कैट एंड लंदन बोथ आर योर स्पेशल नेम. दोनों आपके विशेष नाम है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वीन. क्वीन इट्स योर जनरल नेम. क्वीन आपका जनरल नेम है, सामान्य नाम है. ओके, क्वीन तो कोई भी हो सकता है ना. क्वीन किसी का भी, अब विक्टोरिया एक क्वीन है. ओके, और महारानी विक्टोरिया क्वीन है, और अदर भी कोई नेम ले ले क्वीन का, तो क्वीन तो किसी, मतलब क्वीन के इंक्लूडेड तो सारी क्वीन आ जाएगी ना. तो क्वीन इट्स अ जनरल नेम. एक जनरल नेम है. तो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड क्वीन. ओके, एंड स्टूडेंट, माउस. माउस मीन्स चूहा. ओके, तो माउस का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है ना, स्पेशल नेम नहीं, तो माउस इट्स अ जनरल नेम. ओके, सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड माउस. इट्स योर स्पेशल, इट्स योर जनरल नेम, नॉट स्पेशल नेम. ओके, एंड चेयर. चेयर तो वुडन की भी हो सकती है. ओके, आयरन की भी हो सकती है ना. तो चेयर इट्स अ जनरल नेम, नॉट एनी स्पेशल नेम. कोई स्पेशल नेम नहीं है, जनरल नेम है. ओके, सो से इन दिस पोएम पुसी कैट, योर जनरल नेम्स आर क्वीन, माउस, चेयर. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दीज वर्ड्स क्वीन, माउस एंड चेयर. एंड स्टूडेंट्स, योर special names are pussycat and London. So students, underline below these words, pussycat and London. Clear? So students, we have solved this first number poem. Okay, let's see second number poem, Jack and Jill. Okay, so students, this poem Jack and Jill based on one girl and one boy, Jack and Jill. Okay, Jack it's a boy name. Okay, and Jill it's a girl name. Okay, so ये है Jack Jill. तो if we can see in this picture, okay, ये Jack है and Jill है. Okay, so let's see. Let's read this poem. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Okay, Jack and Jill went up the hill. Okay, it's mean पहाड़ी के ऊपर गए. Hill means पहाड़ी. To fetch a pail of water. Water means पानी. A pail means एक बाल्टी. Okay, to fetch means लाने के लिए. To fetch a pail of water. To fetch a pail of water. It's mean पानी की एक बाल्टी लाने के लिए. Okay, पेल मिस होता है एक बाल्टी. जैक फेल डाउन. ओके, जैक नीचे गिर गया. एंड ब्रोक हिज क्राउन. क्राउन मिस मुकुट, और इसका जो क्राउन था वो टूट गया. ओके, ब्रोक मिस टूट गया. एंड जिल केम टम्बलिंग डाउन. टम्बलिंग मिस होता है लुढ़कते हुए. आफ्टर मिस बाद में. केम मिस आना. केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कब. कम मिस आना, केम मिस आया. ओके, एंड झील केम टम्बलिंग आफ्टर, और झील उसके पीछे लुढ़कते हुए आई. ओके, सो स्टूडेंट, वी कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, जैक एंड झील है, और जैक जो है फेल डाउन कर गया, नीचे गिर गया, और जो झील है वो टम्बलिंग करते हुए उसके पीछे आ रही. ओके, एंड झील केम टम्बलिंग आफ्टर, और जो झील है वो जैक के पीछे लुढ़कते हुए आई. ओके, सो स्टूडेंट, इन दिस पोएम जैक एंड झील बोथ आर योर स्पेशल. दोनों आपके स्पेशल नेम से विशेष नाम. ओके, सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दीज वर्ड्स जैक एंड झील. ओके, किसी बॉय एंड गर्ल का ये स्पेशल नेम है. ओके, एंड हील इट्स योर स्टूडेंट्स, जैक एंड डील पे अंडरलाइन कर लीजिए. ओके, फर्स्टली फर्स्ट लाइन पे जैक एंड डील है, उस पर अंडरलाइन करिए. एंड आफ्टर स्टूडेंट्स 4 नंबर पे जैक है, उस पर अंडरलाइन करिए. एंड लास्ट लाइन पे देखिए, लुक इन दिस लास्ट लाइन डील है ना, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए. क्लियर? सो इन दिस पोएम जैक एंड डील, योर स्पेशल नेम्स आर जैक एंड डील. ओके, जैक स्पेशल है, डील स्पेशल है, तो दोनों पे अंडरलाइन कर लीजिए. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम जैक एंड डील, योर जनरल नेम्स आर हील, पेल, वाटर एंड क्राउन. ओके, हील मीन्स पहाड़ी. ओके, तो एक जनरल नेम है. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड हील. ओके, पेल भी आपका एक जनरल नेम है. ओके, वाटर भी जनरल नेम है. एंड क्राउन इट्स आल्सो योर जनरल नेम. ओके, सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दीज वर्ड्स हील, पेल, वाटर, क्राउन. ओके, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स योर जनरल नेम्स. क्लियर? ये आपके जनरल नेम से सामान्य नाम है. क्लियर?
So student, we have solved this exercise and I hope you must have understood this exercise. I hope you have no problem in this exercise. Okay, now we are going to read and solve exercise A, answer this question of this chapter 4 in our Fair English Language notebook. Okay, so let's see. Exercise A. Your exercise A is answer these questions. Answer means उत्तर दीजिए. These means in questions means प्रश्नों के. Answer these question it's mean in प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is what are naming words? What means क्या? R means है. Naming words means नाम वाले शब्द. What are naming words? नाम वाले शब्द क्या है? योर फर्स्ट नंबर आंसर इज द नेम्स दैट वी गिव टू पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. इट्स मीन द नेम्स मीन्स नाम, दैट मीन्स जो, वी मीन्स हम, गिव मीन्स देते, टू पीपल मीन्स लोगों को, एनिमल्स मीन्स जानवरों को, एंड मीन्स और, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाम वाले शब्द. हम जो नाम वस्तुओं, लोगों और जानवरों को देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. ओके, नाम जो हम लोगों, जानवरों और वस्तुओं को देते हैं नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, नाम वाले शब्द कहलाते हैं. लेट्स एग्जांपल राम. ओके, राम इट्स अ पर्सन नेम. ओके, तो इट्स अ नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द है. लॉयन इट्स अ एनिमल नेम, इट्स अ नेमिंग वर्ड है. बुक इट्स अ थिंग नेम, इट्स अ नेमिंग वर्ड. ओके, तो राम, लॉयन, बुक, राम, शेर, किताब, ये आपके क्या नेमिंग वर्ड्स है, आपके नाम वाले शब्द है. क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेमिंग वर्ड्स. ओके, व्हाट मीन्स क्या? इट मीन्स है. द अदर मीन्स दूसरा, नेम मीन्स नाम, ऑफ मीन्स का, नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाम वाले शब्द. ओके, नाम वाले शब्द का दूसरा नाम क्या है? नेमिंग वर्ड्स का अदर नेम क्या है? ओके, सो स्टूडेंट्स, हम नेमिंग वर्ड्स को और किस नेम से जानते हैं? ओके, इस क्वेश्चन का मीन है कि हम नेमिंग वर्ड्स को और किस नेम से जानते हैं. ओके, so students, your second answer is naming words are also called nouns. Okay, naming words it means नाम वाले शब्द, आर मीन्स है, also means भी, called means कहते हैं, nouns means संज्ञा. Okay, naming words are also called nouns. it means नाम वाले शब्द को हम संज्ञा भी कहते हैं. naming words को हम nouns भी बोलते हैं. naming words and nouns both are same, दोनों सेम है. क्लियर? हम naming words को nouns भी कहते हैं. क्लियर? नाम वाले शब्द को संज्ञा भी बोलते हैं. लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर nouns. nouns क्या है? ओके, संज्ञा क्या है? So student, let's see third number answer of this question number third, which is your last question of this exercise A. Okay, your third number answer is names of people, places, animals and things are called nouns. Okay, name means naam, of means का, people means लोगों, places means स्थानों, animals means जानवरों, and means और, things means वस्तुओं, are means है, called means कहते, nouns means संज्ञा. Names of people, places, animals and things are called nouns. It's mean लोगों, स्थानों, जानवरों और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं. Okay, किसी भी पीपल का नेम हो गया, प्लेस का नेम हो गया, एनिमल का नेम हो गया, थिंग का नेम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, जानवर का नाम है या वस्तु का नाम है, वो हमारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, संज्ञा होते हैं. ओके, लेट्स एग्जांपल. योर एग्जांपल इज जैक. ओके, जैक इट्स अ पर्सन नेम. एक पर्सन का नेम है ना, व्यक्ति का नाम है. इट्स अ बॉय नेम, बॉय का नेम है ना जैक, तो इट्स अ नाउन. एक नाउन है आपका, संज्ञा है. ओके, कानपुर इट्स अ प्लेस नेम. एक प्लेस का नेम है. ओके, एक सिटी का नेम है ना कानपुर, एक प्लेस हुआ तो कानपुर इट्स अ नाउन. लॉयन, लॉयन मीन्स शेर, लॉयन इट्स अ एनिमल नेम. एक एनिमल का नेम है ना, तो लॉयन इट्स अ नाउन. बुक इट्स अ थिंग नेम. ओके, तो किताब इट्स मीन बुक आपका क्या है? नाउन है. ओके, संज्ञा. तो जैक, कानपुर, लॉयन, बुक, ऑल दीज वर्ड्स योर नाउन. ये आपके क्या नाउन से संज्ञा है. क्लियर? सो स्टूडेंट, we have solved this exercise and I hope you must have understood all questions of this exercise. You have no problem in any answer of this exercise of chapter 4. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise A and O, which is page number 15 and 16 of this chapter 4 in your completed these exercise A and O in your English language book Cornerstone. And after this note down exercise A, answer these question of this chapter 4 in your English language notebook. So today's class work, आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए जो पेज नंबर 15 पे है इसे कंप्लीट करना है. एंड आफ्टर इट्स जो पेज नंबर 16 पे आपके एक्सरसाइज ओ है उसे कंप्लीट करना है. एंड लास्ट नोट डाउन एक्सरसाइज ए ऑफ दिस चैप्टर 4 इन योर फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक. ओके, विद योर बेस्ट हैंड राइटिंग. सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपको एक्सरसाइज ए अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे नोट डाउन करना है. टुडेज क्लास एंड जो होमवर्क इज दैट, आज आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज ए, ओके, आपको एक्सरसाइज ए एंड ओ, ओके, एक्सरसाइज ओ आपको लर्न करना. ओके, ओनली ओ. ठीक है, तो स्टूडेंट टुडेज होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज ओ एंड ए. ओके, बहुत ओके. So students, today's homework is that learn exercise O and A of chapter 4 from your English language book and English language fan notebook. It's a today's homework. Okay, and I hope you have no problem for learning well because I've explained exercise A and exercise O both. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise A and O of this chapter 4 in your English language book, and after this note down exercise A of this chapter 4 in your English language fan notebook and send me your work here. Thank you.